Hello friends, welcome back to Enlightened Classes with Kajal. Today we will discuss the sample question paper of IT Code 402 for Term 2. Let us discuss the question paper and see the pattern of question. The maximum time will be the 60 minutes, maximum marks will be 25. There are two sections as you know, part A and part B, employability skills and subject specific skills. एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से हमारे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमारा जो चैप्टर्स है वो है एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स यूनिट 4 एंड यूनिट 5 ग्रीन स्किल्स। एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 आएंगे, ग्रीन स्किल्स से भी 3 आएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सब पार्ट ए में होगा वो हमारा है 6 क्वेश्चंस। इसमें से अटेम्प्ट करना होगा हमें 4 क्वेश्चंस एंड टोटल मार्क्स विल बी 5, यानी कि 3 मार्क्स का 1 मार्क्स क्वेश्चन 3 होंगे एंड एक जो क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा। पार्ट बी जो है हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स है जिसका 20 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। सो आई सजेस्ट टू फोकस मोर ऑन दिस पार्ट। सो यूनिट 3 जो है हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड यूनिट 4 वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। इसमें से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से 7, वेब एप्लीकेशन से 8। टोटल वी हैव टू अटेम्प्ट, total question will be 15 and we have to take 10. Okay, now we'll next move to next. Now, so class 10 session 2021-22 sample question paper for term 2. We will read some general instructions. So paper is divided into 3 sections A, B and C. Section A is of 5 marks. It has 6 questions and you have to attain 4. 1 to 4 question number is of 1 marks. We have to attain 3, 5, 6 are 2 marks. We have to attain only 1. Section B is of 12 marks. Section B जो है हमारा 12 marks carry कर रहा है. Total number of question is 12. 7 to 12 question are of 1 marks. We have to attain 4 out of 6. 13 to 18 are of 2 marks. We have to attain 4 out of 6. Section C is comprises competency based question of 8 marks. There will be 3 competency based question. We have to name 2. Each question is of 4 marks. It is from question number 90 to 21. Let us see and attempt the question. Section E. Question number 1. Give one quality of successful entrepreneur. This would be the competence, risk taker. Okay, let's see the mark sheet. Yes, they are competent. Now, name a term used for false belief or opinion. किसी के बारे में अगर हम लोग गलत धारणा व्यक्त करते हैं तो उसे क्या हम लोग कहते हैं? मिथ कहते हैं. We have read it well. I hope you have read it well. This is myth. What is this? Myth. Okay. Now, give any one practice or a sustainable process that is being used to preserve the environment. एक प्रैक्टिस बताना है जिससे हम इन्वायरमेंट को प्रिजर्व कर सकते हैं. सो बहुत सारे प्रैक्टिस है. हम लोग 3 R's को अडॉप्ट कर सकते हैं जिसमें रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज या फिर वर्मिंग कंपोस्टिंग कर सकते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं. किसी भी एक प्रैक्टिस को आपको लिख देना. आप खुद से भी लिख सकते हैं. जरूरी नहीं है कि जो हमारे सैम्पल पेपर में दिया हुआ है वही हम लोग लिखें. खुद से कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं जो आपने पढ़ा है. Now, give an example of large scale production of solar power. Okay. Solar power, nuclear power, ये सब हमें देख लेना होगा. So what is the answer? It is Charanka Gujarat Solar Park. Now, 2 marks question. Give any 2 function. 2 function of entrepreneurs: create job opportunities, provide better, making decisions, managing business. So these are 2. Reduced inequalities is one of the sustainable development goals set up by the UN. Give any 2 ways to reduce inequalities. जो inequalities है हमारे सोसाइटीज में वो उसको रिड्यूस करना एक सस्टेनेबल गोल से. तो 2 तरीका बताइए जिससे आप रिड्यूस कर सकते हैं इनइक्वालिटीज को. तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग कोऑपरेट कर सकते हैं, एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं. देखते हैं आंसर क्या दिया.
हाँ हेल्प कर सकते हैं, फ्रेंडली रहो सब एक साथ। लड़ झगड़ के क्या होगा? वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, ऑल आर इक्वल हियर। I would like to tell you, develop your mind because everyone is equal here. Now section D. Question number 7. Name a device that converts digital signal to analog that can travel from over phone lines. So we have read that modem is a device that converts digital signal to analog and analog signal to digital. So answer will be the modem. Let us see in the mark sheet. Yeah, it is given here, modem. Now question number 8. Dash key is an accessibility function which is designed for people who have impairment, vision और cognitive disabilities. कौन सा की है जिसे हम लोग जो पीपल हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड है उसके लिए एक्सेसिबल फंक्शन के लिए बनाए हैं। तो दिस इज सो कौन सा की है जिसे हम लोग एक्सेसिबिलिटी फंक्शन जो पीपल विजुअली इम्पेयर्ड है उसके लिए बनाए हैं? तो टॉगल की विल बी द आंसर। Toggle key will be the answer, you can see here. Now 9. Network in which certain companies have a special dedicated task providing services to one other computer are called client server network. We know कि client server जो network होता है उसमें बस एक जो होता है वो main की होता है, बाकी सब जो होते हैं उसके clients होते हैं। तो client server will be answer. Okay. Mention any two integer data type of a table filled in a डेटाबेस। हम लोग डाटा टाइप में इसे पढ़े थे कि कौन कौन से इंटीजर के डेटा टाइप होते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? यू नो टेनी, स्मॉलेंट, इंटीजर, न्यूमरिक, ये सब इसमें से कोई भी दो लिख देना। ओके। नाउ नेम द रिलेशन इन व्हिच वन कॉलम ऑफ द प्राइमरी की इज एसोसिएटेड विथ all the columns of the associated table and vice versa. तो कौन सा रिलेशनशिप है? तो वन टू मेनी। देखिए यहाँ पे क्या है कि वन कॉलम से ऑल कॉलम से रिलेटेड है, तो इसलिए क्या होगा? वन टू मेनी। क्वेश्चन नंबर 12. डिफाइन रिपोर्ट्स ऑफ अ डेटाबेस। सो रिपोर्ट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द टेबल इन अ समराइज्ड मैनर। किसी भी चीज को समराइज करने के लिए रिपोर्ट्स का यूज किया जाता है, या फिर किसी को आउटपुट को जनरेट करने के लिए क्लियर फॉर्मेट देता है रिपोर्ट को, तो इसे हमें लिख देना है बस, और कुछ नहीं करना है, बस लिख देना है। क्या लिख देना है? अरे भाई आंसर लिख देना है, एक साल से पढ़ने हैं। लिस्ट स्टैंडिंग फॉर एडवांटेज एसोसिएटेड विथ नेटवर्किंग। कौन सा एडवांटेज है नेटवर्किंग से एसोसिएटेड? तो हम लोग डाटा शेयर कर सकते हैं, हार्डवेयर शेयर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हैं, सेव पेपर एंड पेन कर सकते हैं, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर सकते हैं। देखते हैं क्या दिया है मार्कशीट में। सो वही सब पॉइंट्स दिए हैं आपको, बस कितने लिख देना है? 4 लिख देना है। डिफरेंशिएट बिटवीन वायर्ड एंड वायरलेस एक्सेस, गिव वन एग्जांपल फॉर ईच। सो जो वायर्ड होते थे एक्सेस, उसमें वायर का यूज हम लोग करते थे इंटरनेट एक्सेस के लिए, लेकिन जो वायरलेस होता है वो विदाउट द यूज ऑफ वायर ही हो जाता है एक्सेस। सो वायर्ड का जो होगा वो पहले ज़माने में यूज होता था, जिसमें हम लोग डायल अप पढ़े थे एग्जाम्पल्स में, एंड यू नो DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। एंड वायरलेस में जो अभी चल रहा है वाईमैक्स, वाईफाई, ये सब जो हो गया वो हमारा वायर्ड हो गया। आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, आप अपने लैंग्वेज में भी आंसर लिखिए, आपका मार्क्स कोई नहीं काटने वाला है, ठीक है। Now what do you understand by IPS with respect to web application? Name any two connection type that home users use. Okay? IPS इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें एक्सेस देता है कैसे? इंटरनेट से। किसके यूज से? डायलअप, मॉडेम से, वाईमैक्स, वायरलेस में हमारा आ जाएगा ब्रॉडबैंड। ये सब हमारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, बस कुछ नहीं करना, एग्जाम्पल एक दो लिख देना है। हाउ एंट्री रिक्वायर्ड एंड डिफॉल्ट वैल्यू प्रॉपर्टीज द टेबल फिल्ड इन अ डेटाबेस और इवन फॉर ईच अदर। कैसे डिफरेंट? एंट्री रिक्वायर्ड मतलब क्या होता है? जिसमें एंट्री आपको करना ही होगा, एंड डिफॉल्ट वैल्यू मतलब जो आपने सोचा है ऑटोमेटिकली। डिफॉल्ट का मतलब ये होता है
ऑटोमेटिकली। तो देखते हैं आंसर क्या है भाई। इंटर रिक्वायर्ड, अगर आपने यस कह दिया तो आपका जरूरी नहीं होगा उसमें इंसर्ट वैल्यू करने के लिए, वरना हमारा जो फील्ड होगा वो लेफ्ट ब्लैंक नहीं छोड़ा जा सकता है। डिफॉल्ट वैल्यू में क्या होगा कि अगर आप प्रोवाइड नहीं करते हैं वैल्यू को तो खुद से ही हो जाएगा, बस यही तो लिखना था। नाउ व्हाट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, एक्सप्लेन इट्स टू पर्पस। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है, इसके दो पर्पस लिखने हैं। So referential integrity is used to maintain accuracy, consistency of data in relationship. Okay, data can be linked between two or more tables with the help of primary key. तो ये क्या मदद करता है कि avoid record can be added to a related table, अगर अवेलेबल नहीं हो प्राइमरी में जो वैल्यू मॉडिफाइड कर सकता है, डिलीट कर सकता है रिकॉर्ड्स को। So these are the function. Now identify the column and data type of a table airline. Means are at least 4 columns with data type. आपको 4 यानी कि आपको एक टेबल क्रिएट करना है, क्या होगा एयरलाइन, जिसका नेम क्या होगा एयरलाइन। ओके एयरलाइन, इसमें आपको 4 कॉलम्स देने हैं, उसमें कुछ डेटा टाइप्स भरने हैं, जैसे कि फ्लाइट नेम क्या होगा, फ्लाइट नंबर क्या है, कब शुरू होगा, टाइमिंग क्या है, डेस्टिनेशन क्या है। तो आपको 4 कॉलम्स ऐसे दे देने हैं इंफॉर्मेशन के और उसके डाटा टाइप में। जैसे फ्लाइट नंबर जो होगा उसमें इंटीजर होंगे, जो हमारा फ्लाइट नेम होगा उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा टेक्स्ट होगा ना, ये सब आप लिख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है। ओके देन नेक्स्ट मूव सेक्शन सी competency based questions. To read it carefully, okay? रीडिंग टाइम में आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ लें। 15 मिनट का रीडिंग टाइम है आपका, इसमें तो आप 2 क्वेश्चन कर ही लेंगे। Rahul and Amit are working on a school project assigned by their teacher. राहुल और अमित क्या है, एक दोस्त हैं, उन्हें कोई स्कूल प्रोजेक्ट दिया गया है उसके टीचर के द्वारा। They have to send instant messages to each other and also do video conferencing after school hours in order to complete the project online. तो उन्हें क्या करना है भाई, इंस्टेंट मैसेजिंग करना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करना है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। सो क्वेश्चन क्या है, सजेस्ट एनी 4 गुड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर। तो हम लोगों ने ये पढ़ा है, जिसने पढ़ा वो तो फटाफट इसके मुंह पे ही होगा। चलो भाई आप लोग भी बता दो, चलो मैं बताती हूँ क्या होगा। याहू मैसेंजर, स्काइप, रेडिबल है ना, व्हाट्सएप, दैट्स ऑल। जिसने पढ़ा होगा वो जल्दी से आंसर दे देगा। देखिए यहाँ पे है जूम, जूम से तो सब लोग वाकिफ हो गए, कोविड के टाइम हम लोग पढ़े थे इस पे, याद नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटर्स लिस्ट 4 हार्डवेयर दैट राहुल एंड अमित नीड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कंप्यूटर के अलावा और 4 हार्डवेयर कौन से हैं जो उन्हें जरूरत होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। तो स्पीकर, माइक्रोफोन, हेडफोन और क्या चाहिए, स्पीकर, माइक्रोफोन, हेडफोन और क्या चाहिए, वेब कैमरा भी तो चाहिए, बिना कैमरा का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं हो पाएगा। Now 20. Rahul has purchased some stationery items from an online site. He has to make payment online for the items to complete the transaction. Okay, transaction करने के लिए से ऑनलाइन वेबसाइट चाहिए। Help by answering his queries. कुछ queries है, उसका कुछ questions है, आपको उससे हेल्प करना है। Suggest any 2 options that he can use to make payment of his bill ऑन द ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट। तो आपका डेबिट कार्ड यूज कर सकता है, क्रेडिट कार्ड कर सकता है। आई मीन 2 सिचुएशंस वेयर ऑनलाइन शॉपिंग कुड बी यूजफुल। अगर कोई प्रोडक्ट
मार्केट में अवेलेबल नहीं हो तो आप लोग उसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास टाइम नहीं हो उसे खरीदने के लिए, तो आप लोग ऑनलाइन घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन। नेम एनी 2 पॉपुलर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वेबसाइट्स। क्या है? ऑनलाइन या अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, इसमें ऑनलाइन शॉपिंग होता है। फुल फॉर्म ऑफ सीओडी क्या होगा? कैश ऑन डिलीवरी। This is the task. You have to give the answer in the comment section of SQL command. I would like to say you, if you practice the SQL command at least 4, then it will be confirmed to you. I would also upload the video of SQL. So thank you so much for watching this video. If you like this video, then please press the bell icon, subscribe button and like button, so that you can get the latest information and videos on IT code 402 before your board exams, and don't miss, because these are very important for your exam. Thank you so much.